Oh, morning everyone. Morning, morning, morning. Cheers. Good morning everyone. Good morning Rohit. Good to see you all back again. Timuminder with another rocking live interview. Morning Milan. So, hope everyone is running good, enjoying their life. लॉकडाउन में सब enjoy कर रहे हैं and morning Manish. So we start with a double bicep. Okay guys, I am doing good. Thank you Ashwin, thank you. God bless सूरज. एंड आज सत श्री अकाल जसप्रीत. आज का सेशन जो सा है बहुत ही रॉकिंग सेमिनार है, बहुत ही रॉकिंग सा एक इंटरव्यू है और हम आपके सामने लेके आएंगे ऐसे बंदे को जो सा हु इज स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली, यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम अ फैमिली. इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब पड़ी, जॉब करने के बाद अगेन ही मेट मी on one of the coffee with Aminder and he discussed. So we'll talk about with him only all the discussions और जिस level में उसने पहुंचाई है अपनी ये transformation, that is again a different level of conditioning has come up and congratulations to the person. We said कि we only reduce the body fat percentage, rest has been done by the body itself. Thank you Harjot, thank you. And hope everyone is doing the exercises at home and hope no one has stopped doing exercises. सारे के सारे exercise कर रहे हैं घर में. अगर किसी को कोई भी चीज का डाउट हो तो immediately you should join a team. जुलाई बैच तो चला गया है, अब अगस्त बैच के लिए ज्वाइन करें. थैंक यू वत्सल. High calories, my heartbeat increasing, I want to gain weight. Problem with high calories, I don't know what is my India. I have nothing. I don't know what you're trying to say. Your heart rate increases through your increasing the calories or what? I have no idea what you're trying to say. So we'll just wait for another few minutes so that maximum people can come up. Oh Rohit, welcome. You are back again. Thank you. Rohit, get started and in another 12 weeks you should be ready with the interview with us. Good morning Dennis. Siddiqui, in fat loss you just need to take care of the exercise postures and the diet should be in deficit. That's it. Yes Amit, हम गेनिंग का भी प्लान करते हैं. माय इंडिया, यू हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. अगर एक्सरसाइज शुरू करोगे थोड़ी थोड़ी तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा. मे बी यू नीड टू चेक आउट विद द डॉक्टर व्हाट इज द इशू. फाइनली कोई इशू होना चाहिए तभी तो सामने आएगा. मॉर्निंग ईशान, कैसा है मिशान? ऑल गेट रेडी नाउ, यू हैव टू बी द नेक्स्ट, यू हैव टू अपीयर. All Utkarsh, we need to check out at 17% how is the body conditioning. अगर body conditioning अच्छी है and it can only be decided on looking onto the pic. I don't know him why it is not reducing. We need to check out. You have to get into the deficit only and then only the things are going to work. Hello Gagan. Hello Ankur, we'll be just waiting for 1 or 2 minutes and we will start the interview immediately. Yes Amit, at 75 I will recommend you to come down little bit more. Yogi, morning. Ishan, don't walk. Now you have to be very very strong. Ishan, you are coming out very good. Your condition is very good. Just last के 10-12 हफ्ते हैं उसको खींच दो. As much 65, 511, my India, eat as much you can. Don't count calories.
My India, don't count calories, just eat. Morning, morning, Sahil. Thank you, Ravel, for following us. Yes, Vatsal. We are not here to tell you the charges. उसके लिए आप अपने सत श्री अकाल जग any sort of a workout, Siddiqui, doesn't matter what sort of a workout, what suits your body, what is available, that need to be done. Raveli, for that thing you can just go to the main page and press the link to get all that information. July batch home workout or killing machine. Yes, Sahil, yes, you said. ये देख लीजिए आप सबके सामने जुलाई बैच शुरू किया और होम वर्कआउट सबको किल कर रहा है. लोगों को लगता है कि जिम पे ही जाके. सो वेरी सून वी आर कमिंग आउट विद अ न्यू सीरीज ऑल्सो. सबको बता दूं, एक सीरीज लेके आ रहे हैं ट्यूब के साथ और आपको उसी इंटेंसिटी से हम सारी की सारी एक्सरसाइजेस कराएंगे. A to Z जो सी आप एक्सरसाइजेस जिम के अंदर करते हैं वही वाली सारी की सारी सीरीज हम रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ लेके आ रहे हैं और विद सेम इंटेंसिटी के साथ आप वही सारी चीजें करेंगे. वही रोइंग करेंगे, वही लैट पुल डाउन करेंगे, वही बाइसेप कर्ल्स करेंगे, वही स्क्वाट्स मारेंगे. विद सेम इंटेंसिटी लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी. ये वेरी गुड लव, बहुत बढ़िया चल रहा है. 5 किलो कम हो गया, बहुत बढ़िया. It's not, try to mind. I don't know, you are asking questions that is irrelevant. Start exercising और exercising को learn करो पहले. My India, your first focus should to learn the exercise. Utkarsh, why in September? Why so late? Tejas, morning Abhishek, Abhishek, you are all set, coming up good. 10 हफ्ते last कर दो. Very good, Aritra, good luck. Sat Shri Akal, Ashish, कैसा है? How are you? Good to see you. Is my voice audible? Very clear? Morning, Maddie. All is well, rocking. मोटिवेशन नहीं मिलता स्टार्ट करने का एक्सरसाइज. दैट मीन्स यू डोंट हैव अ गोल. मेक अ गोल साइकत, गोल बनाइए और गोल का वाई डिसाइड कर लिया, अपने आप आ जाएगा. वेरी गुड आशीष, गुड टू सी यू. सो ऑल सेट, कैन वी स्टार्ट विद द इंटरव्यू? ऑल आर एक्साइटेड, होप ऑल आर एक्साइटेड. हम बहुत सारी बातें करेंगे मिलन से और उसके मेंटोर से भी बात करेंगे और क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या उनको दिक्कत आई, कैसे कैसे चले. लेट्स स्टार्ट. गुड, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन. मिलन, कैन यू जस्ट से हाई सो दैट आई कैन कनेक्ट टू यू फॉर द फर्स्ट लाइव इंटरव्यू. एंड जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं, मॉर्निंग विष्णु, जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस इंटरव्यू के बिहाफ के ऊपर पूछना शुरू कर दें. I know we are all excited. I am also excited with a pose. Yeah. Thank you, Ashish. It is all the blessing from the universe. So we go live now. Man himself. Morning, Anjali. Yes, मिलन को हम कनेक्ट कर रहे हैं. Yay! Morning, sir. Morning, smart boy. कैसा है? Thank you, sir. तगड़ा sir, तगड़ा एकदम. बहुत बढ़िया. तू तो भाई बिल्कुल शादी के लिए तैयार हो गया भाई. अभी नहीं सर. अभी और पहले बहुत अचीव करना है. अभी तेरे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? या सर, ऑडिबल सर. हाँ, अभी ठीक है. अब मेरे को ना यहाँ कान पे आ रही है बहुत क्लियर सी आवाज तेरी. सर, ओके मिलन, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में.
कि मिलन तुमने टीम को कब अप्रोच किया और क्यों अप्रोच किया, और उससे पहले अपना बैकग्राउंड बताओ सारा एक्सरसाइज के बारे में, और कुछ गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी बताओ कि उस टाइम गर्लफ्रेंड्स कितनी थी और अभी कितनी है, ठीक है। सो हम सब पूछेंगे आज, हम सब पूछेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं तुम सबसे। ओके मिलन, तो अपने बारे में बताओ, जब तुमने पहली बारी एक्सरसाइज शुरू करी और उसमें कितना टाइम लगाया और क्या क्या चीजें तुमने प्रोसेस करी बिना टीम को ज्वाइन करने से पहले। हाँ जी। सर टीम से बहुत पहले मैं 8th क्लास में था सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया। मैं एक्चुअली बचपन से ही बहुत हेल्दी था, काफी हैवी था। तो हम्म। 8th क्लास में मेरे फादर ने मेरे को जिम ज्वाइन करवाया, बिकॉज हर कोई क्लास में छेड़ता था, मोटा मोटा बोलता था सर। तो एक था कि गोल से कि हाँ भी पतला होना है, जिम ज्वाइन किया। लेकिन ये सर इट्स अराउंड 2003। उस टाइम पूरे सिटी में एक जिम होता था और ट्रेनर्स एंड ऑल का कुछ था ही नहीं सर। तो बस वो जिम कौन में सी जा। जगह थी, कहाँ के सर मिलन, कहाँ मैं कहाँ कौन सी जगह थी वो? हिमाचल में था सर। हिमाचल हिमाचल में में कौन सी हमीरपुर। जगह? हमीरपुर में सर। हमीरपुर। जी हमीरपुर में, सर। अच्छा ठीक है। तो वहां तो हमीरपुर में तो उस टाइम तो बहुत ही छोटे छोटे, मेरे को तो शिमला में भी नहीं मिला कोई जिम। तो तुम्हारा तो फिर थोड़ा सा गांव में था, तो फिर कैसा किया, कैसा हुआ जिम जाके, क्या फील हुआ? जिम जाके सर, जिम के ऑनर जो भैया थे वो बताते थे, और बाकी जिम में जो बाकी सीनियर लोग थे वो कॉलेज में थे, मैं स्कूल में था, तो वो करवाते थे। उस टाइम सर नॉलेज तो कोई चांस ही नहीं था सर, वो भी जैसे कर रहे थे कैसे कर रहे थे। बट उससे विद इन फर्स्ट ईयर सर मेरे को लोअर बैक इशू हो गया था, बिकॉज क्यों, फॉर्म कैसे? फॉर्म का कोई आइडिया नहीं था सर। बस किए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, किस लिए कर रहे हैं पता नहीं, बस कर रहे हैं। भैया ने बोला ऐसे करना है ऐसे करना है, बस। तो ये सिलसिला कितना टाइम चला मिलन? सर विद इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेरे को लोअर बैक इशू हो गया था, देन ब्रेक लिया सर 1 साल के आसपास, देन फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो स्कूल से होते होते सर फिर कॉलेज में एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ग्रुप बना और हर कोई लीन और स्मार्ट ही दिखना चाहता है कॉलेज टाइम पे। तो वहां से बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत सर इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करके या जो भी था सर ट्राई किया। देन कॉलेज के बाद सर मेरा मेन स्टार्ट हुआ था, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था, जिसके लिए मैं काफी अनफिट था। हम्म। उसके लिए सर फिर मैंने पुश किया। तब तक मेरे कुछ सीनियर्स कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके थे सर, जो जिन्होंने जो कि प्रोफेशनली भी खेलते थे। बट एक चीज सर मेरे को हमेशा, मैं ब्लेस्ड रहा हूँ कि इवन दो प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ सर एक्सपोजर मिला, लेकिन उन्होंने कभी स्टेरॉइड के लिए पुश नहीं किया सर। वेरी गुड वेरी गुड, वो रियल प्लेयर्स वही तो होते हैं, दैट आर रियल प्लेयर्स। जो उनसे ही सर प्लेयर्स सीख होते के। हैं, जो रियल प्लेयर्स होते हैं, वो ही तो होते हैं जो कभी भी रिकमेंड नहीं करते। जब प्लेयर ट्रेनर बन जाता है ना, तो उसकी ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। जब तक वो प्लेयर रहते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। अच्छा, फिर? उनकी गाइडेंस में सर, और थोड़ा बहुत फिर तब तक नेट से देख देख के स्टार्ट किया। देन मैंने सर लूज किया था अराउंड, मैं जब स्टार्ट किया था सर 100 प्लस था। देन आई केम टू अराउंड 80 जब मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। वहाँ पे ओके। ट्रेनिंग में, देन वहाँ पे सर नेवी के वार्डन्स थे, तो वो लोग तो वैसे भी वहाँ पे लगा के रखते थे। देन वहाँ से सर आई केम डाउन टू 72 जब मैं हम्म। ट्रेनिंग खत्म करके आया। तो दैट टाइम आई वाज लीन, बट ऑन बोर्ड सर मेरे को थोड़ा इशू हो गया था, मेरा नी इंजरी हो गया था। देन आई लेफ्ट शिपिंग और मैं यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में जॉब करने लग गया। कहाँ पे? सर माय फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन एमपी सर। एमपी में एक छोटी, बहुत छोटी सी जगह है सर, अनूपपुर। और हम्म। वो भी अनूपपुर के काफी रिमोट में थे सर। ओनली हमारी अकोमोडेशन होती थी कंपनी की, एंड अराउंड वाज जंगल, कुछ नहीं था अच्छा, तो वहां पे एक्सरसाइज कैसे करते थे? सर। कंपनी ने थोड़ा बहुत कुछ सामान दिया हुआ था सर वर्कआउट के लिए, टू वेरी गुड। कीप द एम्प्लॉयज फिट। तो वहां पे बाकी कलीग्स के साथ स्टार्ट किया फिर से, थोड़ा बहुत। देन सर विद इन 1 ईयर फिर मेरी ट्रांसफर हो गई टू छत्तीसगढ़। फिर वहां पे जिम ना के बराबर था सर, सिर्फ कुछ फ्री वेट्स थे।
तो हम्म। उनसे ऑन ऑफ कंटिन्यू रखा। देन अगेन सर आफ्टर 1 ईयर आई वाज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई। हाँ। इन चेन्नई सिटी में सर आई गॉट अ डिसेंट जिम। वहां पे फिर कुछ टाइम रेगुलर हुआ वहां। जब तक चेन्नई से पहले सर मैंने काफी गेन कर लिया था, पुट ऑन कर लिया था फिर से। तो चेन्नई में देन अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग और मैं गया था सर अराउंड 68 67 तक। मैं आपको दिखाया भी था हम्म। सर वो जो पोस्ट था जब करेक्ट फर्स्ट टाइम हम लोग करेक्ट मिले थे। करेक्ट। यस। देन चेन्नई के बाद सर अराउंड 8 to 10 months देन आई केम हियर टू इलाहाबाद। आई स्विच द हम्म। कंपनी और यहाँ पे आके फिर यहाँ पे सर आई गॉट माई जॉब इन सिटी। तो एक्सेस टू जिम वाज देयर। इमीडिएटली आके ज्वाइन किया सर। लेकिन उस टाइम पे जब मेरा चेन्नई में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था सर काफी वीक हो गया था। मतलब ब्लैकआउट हम्म। होते थे मुझे क्योंकि मैं कैलोरीज कट करता ही जा रहा था और करते करते आई वाज अराउंड 900 कैलोरीज ओनली। हम्म। तो बहुत हु कोडेड यू, हो किसने बोला तुमको इतना कम करने के लिए, कि अपने आप ही? अपने आप से सर। नोबडी। ओके देन हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट टीम उमिंदर देन? कैसा ऐसा कैसा क्यों? फिर जब तुम अपने आप ही कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तो क्यों हमारी ख्याल कहाँ से आ गया? सर एक्चुअली मैं एक यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ। ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर। डॉक्टर आपको मैंने बताया भी था सर। तो ही मेंशन्ड द टीम नेम सर कि अगर आपको नेचुरली हम्म। ट्रांसफॉर्म करना है तो देयर इज अ टीम। दे आर स्पेशलिस्ट इन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग जाइए उनका पेज चेकआउट करिए। देन वहां से फिर सर मैं टीम के पेज पे आया, चेकआउट किया, ट्रांसफॉर्मेशंस देखी। बहुत सारी आई, अमन भैया की, कशिश की, सबकी ट्रांसफॉर्मेशंस देख के। और लास्ट ईयर सर मैं छुट्टी पे गया हुआ था अगस्त में। देन आई गॉट अ चांस टू मीट यू सर, कॉफी विद अमिंदर। हम्म। तब तक कॉफी मेरा विद माइंड, अमिंदर। या सर तब तक माइंडसेट एक बना रखा था सर कि हाँ मैं स्टार्ट करूंगा विद टीम। बट आई वाज सेविंग सम मनी। मैंने उससे पहले इंक्वायरी हम्म। करके रख लिया था। बट देन आपसे हम्म। मिला उसके बाद जैसे अपने फंडास टीम के क्लियर किए और क्या टीम की अप्रोच है एग्जैक्टली सर। बायोमैकेनिक्स भी सर जब आपने उस ट्यूनिंग पे जब बताया सर तो बस फिर नहीं रुका सर। ऑल्दो मैं लेट था सर बैच ज्वाइन करने के लिए, सितंबर अर्ली वर्ड खत्म हो चुका था। बट देन आपसे मिलने के बाद गया था और इमीडिएटली मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो क्यों ज्वाइन कर लिया इमिजिएटली मिलन? तुमने ऐसा क्या हुआ तुमको? सर तब तक इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि सर जो अभी तक मैं कर रहा था उसमें कमी तो थी सर, वो तो क्लियर था। बिकॉज इतना ब्लैकआउट्स होना, इतना वीकनेस आना और इश्यूज होना। तो एक ये था सर, हाँ, कि अब लग रहा है कि सही जगह मिल गई है एक सही गाइडेंस के थ्रू। बिकॉज जिम में भी सर ट्रेनर्स बहुत होते हैं बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे भी जैसा रहा है या कहीं भी सर, कहीं ना कहीं ट्रेनर आपको इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं। वो आप उनके ऊपर डिपेंड रहते हो। वो 1 घंटा वो करवाएंगे, उसके बाद आप जीरो। हम्म। आप नेक्स्ट डे उनकी वेट करोगे। अगर वो छुट्टी पे हैं तो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, अगर फोन पे बात होगी देन ओके, अदरवाइज यू आर जीरो, आप ब्लैंक हो जाते हो। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग था सर। तो उस तुमने जब मिलन टीम ज्वाइन करी इमिजिएटली, तो इमिजिएटली ज्वाइन करने के ऊपर तुमको जब तुम्हारी स्क्रीनिंग वगैरह ली गई, तो तुमको कैसी एक्साइटमेंट रही है? मतलब हाउ वर यू, यू नो, तुमको इतने साल का एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, तो तुमको कुछ फीलिंग हुई कि मैं को कुछ तो पता ही है, मैं तो कुछ तो करूंगा ही? सो आफ्टर स्क्रीनिंग और होने के बाद क्या रियलाइज हुआ? सर इनिशियली था सर कि काफी, अब तक मैंने काफी नॉलेज एक्वायर करी है इनिशियल में। लेकिन जैसे मेंटोर्स अपनी कोच से बात हुई और देन मैंने कुछ उनसे पूछा, कुछ उन्होंने आंसर किया, कुछ अपनी तरफ से फिर एडिशनल बताया। तो फिर सर ये था कि अब ट्रांसफॉर्म करना है। वो तो सर सोच लिया था, उनसे बात की कि मेरे माइंड में ऐसा है, मतलब मैं खुद को ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ऐसा देखना चाहता हूँ। इज इट पॉसिबल? देन ही सेड यस इट्स पॉसिबल। तो एक इतनी सही ट्यूनिंग बनी है सर अपने मेंटोर के साथ। तो उसके बाद हाँ। ऐसा था, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, जब तक बोलोगे मैं करूंगा। मैंने अपना दिमाग ना उठा के साइड रख दिया, अब आप बस बोलो। ऑसम। तो तुमको कभी मिलन ऐसा लगा नहीं कि तुम्हारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस, मैं भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लूं बीच में, तो यू नो, क्यों तुमने ऐसा सोचा कि भाई मैं अपना दिमाग ना लगाऊं और सारा का सारा मैं
बस पूरा का पूरा इनके ऊपर दे देता हूँ, जो ये बोलेंगे वो करूंगा। इनिशियली सर ट्राई किया था ना सर, देखा कि सामने वाला बहुत आगे है ऑलरेडी, फायदा नहीं है। हम्म। हम्म। तो आप सबको बता दूं, आप जो भी सारे देख रहे हैं, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे जने आते हैं जिनके पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस होता है, बट उनके ऊपर ना एक प्रॉब्लम होती है कि उनको ना बहुत सारी ईगो होती है। हम बहुत सारे जनों का रिफंड भी कर देते हैं ऑन अ फर्स्ट वीक ऑल्सो, क्योंकि वो ना एक्सेप्टेंस ही नहीं कर पाते हैं कि उनको लर्निंग की जरूरत है। उनको लगता है उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े बॉडी बनाई हुई है, तो अब उनको बताने की जरूरत नहीं है। और जब उनकी स्क्रीनिंग होती है तो स्क्रीनिंग में बहुत कमी आती है, तो हमारा काम है कि स्क्रीनिंग को, कमी को ठीक करके उनको ठीक करना, पर वो एक्सेप्टेंस ही नहीं कर पाते। और अपने आप को वो उस ईगो लेवल में रख के हम इमीडिएटली ऑन द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट वीक हम उनको 100% रिफंड कर देते हैं, हम आगे लेके नहीं चलते, बिकॉज देर इज नो पॉइंट। जैसा मिलन ने बोला कि मिलन ने इमीडिएटली उस चीज को लर्निंग प्रोसेस में डाला, अपने दिमाग को साइड में रखा और सारा का सारा दिमाग हमसे लेना शुरू कर दिया और उसी में इंटेलिजेंट बन गया। तो आगे का प्रोसेस बताओ मिलन, क्या हुआ तुम्हारे साथ जब तुमने शुरू किया और तुम्हारी एक्सरसाइजेस शुरू हुई? सर फॉर्म्स करेक्शन शुरू हुई थी मेरे साथ। एक इशू ये था सर कि एक काइंड ऑफ मेमोरी टाइप बन जाती है सर, इतने सालों से कर रहा था। मेरा जो मेन हम्म। इशू उसमें आया था, ऑल्दो मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार रिकॉर्ड कर रहा था और देख रहा था खुद से भी और मेंटोर से भी, जैसे वो बोलते थे कि करेक्ट करना है। कहीं ना कहीं थोड़ा हम्म। सा इशू था सर वो मसल मेमोरी वाला, कि चाह के भी हाथ अगर कहीं जा रहा है तो वो, क्योंकि हैबिट बनी हुई है, वो थोड़ा वहां करेक्ट। जाता, उसमें थोड़ा सा सर टाइम लगा था सेट होने में। बट So देन that's what Milan is trying to say. Everyone try to understand. जितने जने अपने आप को पुराने लग के चखते हैं, उनके लिए रीलर्निंग करना आसान नहीं होता है, पर जो बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन करता है उसके लिए इमीडिएटली लर्निंग करना एक बहुत ही इजी सा प्रोसेस होता है, बिकॉज उसके पास उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। जो भी सिखाया जाएगा फर्स्ट हैंड में सिखाया जाएगा और उनके लिए वो बेस्ट प्रोसेस हो जाता है। पर जो बहुत पुराना छोड़ के और दोबारा ज्वाइन करता है, तो उसके पास एक उसकी हैबिट होती है उसके एक्शन के लिए, और उसको री करना एक तरह का चैलेंज हो जाता है और उसको टाइम लगता है न्यू हैबिट्स को डालने में, क्योंकि पुरानी हैबिट इतनी जल्दी जाती है और जाती नहीं है, और हम ना ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो हमको अपनी नई हैबिट इतनी ज्यादा ओवर कर लेनी होती है कि पुरानी हैबिट को वो याद ही नहीं कर पाता और नई हैबिट्स के ऊपर चला जाता। तो दैट्स अ टाइम फ्रेम which basically we need for everyone to come up and understand this thing, rather than हमारे पास बहुत सारे लड़के आते हैं वो ये बोलते हैं कि सर मेरे को तो पहले प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो 5 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को तो आप आगे वाले फॉर्म में डालिए, आगे वाले फेजेस में डालिए। और हम कर नहीं पाते वो चीज, बिकॉज हम मैकेनिकल गाइज हैं, हमारे को ना बहुत कुछ दिखता है जो तुमको नहीं दिखता, और हम ना अननेसेसरली किसी को भी किसी भी लेवल में इंजरीज की तो दे ही नहीं सकते इजाजत। इसीलिए पहला फेज करना हर एक के लिए बहुत जरूरी होता है, और जो फेज उसको क्लियर कर जाता है वो एक अलग ही दायरे में चला जाता है, और जो पहला फेज ही नहीं क्लियर कर पाता वो टीम के साथ रह नहीं पाता। अंडरस्टैंड, वो टीम के साथ रह नहीं पाता। सो मिलन, जब तुमने वो प्रोसेस शुरू किया, तुम्हारी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन तकरीबन तकरीबन 9.5 महीने की रही है। यस सर। इस 9.5 महीने की डाइट के ऊपर तुमने कभी ऐसा फील हुआ कि तुमको कभी कोई ऐसा डाइट कम दे दी गई है, या ऐसी कोई फूड कम दे दिया गया है जो सा तुमको पसंद नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी डाइट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कभी कभी एग्स खा लेता था, तो उसके अकॉर्डिंग एग्स दिए थे, बट देन मैंने लास्ट ईयर से ही एग्स खाना छोड़ दिया। तो फिर इमीडिएटली मेरी डाइट को प्योर वेज कर दिया गया और मैं तब से वही खा रहा था। इनफैक्ट मेरी बात हुई थी कि मेरे से पूछते थे ये ऑप्शन चाहिए या वैसा ऑप्शन चाहिए, बट उनको खुद ही बोला था कि मेरे को एक आप सेट पॉइंट दे दोगे कोई इशू नहीं है, मैं एक ही चीज को कंटिन्यू सालों तक खा सकता हूँ, मेरे को उसमें कोई इशू है ही नहीं। Awesome. 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 And now this is another point which Milan has come out with this thing. Understand everyone. हम एक ही घर में रहते हैं, हम एक ही ऑफिस में जाते हैं, हम बहुत सालों तक ना एक ही गाड़ी चलाते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप जब ऐसी वेरिएशंस में आना शुरू करते हो कि जब आपको अपनी डाइट में बहुत सारी वेराइटी चाहिए होती है, ये भी दे दो, मंडे को ये चाहिए, ट्यूसडे को ये चाहिए, वेडनेसडे को ये चाहिए, दैट बिकम्स टू मच ऑड फॉर द ह्यूमन बॉडी टू अडॉप्टेड। अगर आप एक ही डाइट को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं
तो वो ना एक आपके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो जाता है और आपका गोल बहुत तेजी से आपको अचीव करने के लिए मिलता है। अदरवाइज आप रोज ही वैरायटी में चले जाते हो और वैरायटी के कारण आप कभी कभी उन सब दिनों में ओवर ईटिंग कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी कैलोरीज इम्बैलेंस कैसे हो गई। सो जोन जोन से भी लड़के एक ही जैसा फूड हमेशा खाते हैं और उसी में सात पांच बार बार वही चना करना शुरू कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स उस वेराइटी में जरूर आएगा, पूरे दिन की आपकी पूरी वेराइटी आएगी जिसमें आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन बैलेंस दिया जाएगा। बट उस वेराइटी में भी अगर आप रोज वेराइटी डालना शुरू करेंगे तो चीज बनती नहीं है। आप अपने घर में कभी भी नहीं चेंज करते, आप उसी घर में सालों साल रहते हो, उसी कमरे में सालों साल रहते हो, उसी गाड़ी को बहुत साल चलाते हो, उसी स्कूल में एक ही स्कूल में 12 से 13 साल चलाते हो। आप वैरायटी की बात मेरे से करते ही क्यों हो? आप मेरे से तब बात करो अगर आपके पास 10 घर हो और एक एक हफ्ते में एक घर चेंज करो, दूसरे घर में जाओ, 10 गाड़ियां हो और रोज एक चलाओ, तब मेरे से बात करना। अगर आप नहीं करते तो इस बारे में बात ना करें और वैरायटी की बात मेरे साथ लेके ना आए, क्योंकि वो ना न्यूट्रिशन की बात जो सी होती है उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है। सो मिलन, जब तुमने वो प्रोसेस शुरू किया इस सारा का सारा करना शुरू, तुमने कभी ऐसा सोचा था कि तुम 100% फ्लोर के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाओगे और तुमको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो प्रोसेस कब आया? सर अराउंड 3 मंथ्स लगे थे सर मेरे फॉर्म्स को करेक्ट होने में। इनफैक्ट अभी सर 9 महीने से ऊपर हो गया है। तो जब अभी भी मैं पोस्ट करता हूँ तो मैं एक्चुअली अब वेट करता हूँ सर कि करेक्शन कोई गलती अगर करी है तो वो करेक्शन आएगा। करेक्शन आएगा ही आएगा। वो तो अभी तक जो हमारे तुम्हारे मेंटर्स हैं वो भी अपनी वीडियोस पोस्ट करके अपनी करेक्शन करवाते हैं, अभी भी कराते हैं। तो लर्निंग इज अ एवर नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो हमेशा चलता रहता है। बट तुमको तकरीबन तकरीबन 12 हफ्ते के अंदर अंदर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस में चले गए थे कि हाँ मैं अब मैं एक्सरसाइज अपने आप बिना किसी इंजरी कराए हुए कर लूंगा, बिकॉज तुम्हारे पास लोअर बैक की इंजरी थी। कोई इश्यू आया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 9.5 महीने के बीच में? सर लोअर इनफैक्ट लोअर बैक नहीं सर, मेरा एसीएल टीयर है और जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे को टेनिस एल्बो भी था उस टाइम। तो विद अभी टेनिस कंडीशन एल्बो कैसी है? ऑल गुड सर। ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आया ड्यूरिंग द प्रोसेस? वो धीरे 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 उसको सर हम लोग अराउंड द पेन अराउंड द इंजरी काम किया सर कोच के साथ मिलके, तो वो यस, बाईपास ही हो गया। देन इट गॉट टाइम टू बहुत हील एंड बढ़िया, अभी बहुत नॉर्मल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुमने कभी बीच में ऐसी कोई चीटिंग वगैरह भी की मिलन तुम्हारे प्रोसेस में? बिकॉज तुमने रोज ही एक फूड खाया सब कुछ, तो बीच में कभी लालच भी आ ही जाता है कभी खाने का, इधर उधर खाने का, तो कभी ऐसा फेज भी आया? सर जब लॉकडाउन हुआ था तो थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक हो गया था सर, उसकी वजह से डिले हो गया, अदरवाइज थोड़ा और पहले हो जाता। यस, हाँ, तो तो उसमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पहले हो गई थी, तो तकरीबन तकरीबन लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा ऐसा हुआ। बट लॉकडाउन के बाद का प्रोसेस बताओ जरा मिलन, कि तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम में आने के बाद इमीडिएटली जब हमारा लॉकडाउन हुआ और हमारे पास जिम की फैसिलिटी नहीं बची, तो तुमने अपने आप को घर में वर्कआउट करते हुए का क्या डिफरेंस महसूस किया दोनों के बीच में? सर लॉकडाउन हुआ था तभी अमेजोन वगैरह की डिलीवरी सर्विस तब तक चल रही थी, तो इमीडिएटली कोच ने बोला कि तुम एटलीस्ट रेजिस्टेंस ट्यूब और बैंड खरीद लो, बाकी हमें हम्म। इनसे भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पास बाकी सामान बहुत है, हम लोग उनसे करेंगे। तो घर उस टाइम सर लकीली मैं घर पे था, छुट्टी पे गया था हम्म। और लॉकडाउन हो गया, वापस आ नहीं पाया। तो फिर घर पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सर वहां पे जो सामान रखा हुआ था, तो कोच से बात करके उससे फिर जुगाड़ करके वो हमने काइंड ऑफ रेप्लिका बनाया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड वी विल ऑल शो यू दैट रेप्लिका नाउ वेरी सून इन अ वीडियो, जहां पे सारे सारे जितने भी जने हैं सब ने कोई ना कोई रेप्लिका बनाया, बहुत सारी एक्सरसाइजेस क्रिएट की। सो जब तुम एक्सरसाइज क्रिएट कर रहे थे तो तुमको कैसा अच्छा लग रहा था मिलन, घर में जब नई एक्सरसाइज क्रिएट हो रही थी? सर बढ़िया लग रहा था, सेम मतलब मशीन को रेप्लिकेट कर रहे थे। मैं डेली कुछ उसमें चेंज करता था और डेली फिर अपने मेंटोर को भेज के पूछता था अब इसमें ये किया है, तो वो बोलते थे इसमें यहाँ से यूज करोगे तुम्हें इधर बेटर आएगा, उधर करोगे, तो वो कंटिन्यू सर इवॉल्व करते रहे उसको, फिर करते गए उसको एज आप कह सकते हैं मल्टी जिम टाइप उसको यूज कर लिया था। उसमें स्क्वाट्स वेरी भी गुड, मारे थे वेरी सर, गुड। बेंच प्रेस भी मारी थी, रोज भी मारी है सर। Awesome, awesome, awesome.
Good morning, Harmeet ji. Harmeet ji has joined us. Good morning, Milan. Harmeet ji is like a person who holds the fitness industry in India. Fitline के owner हैं ये. And Harmeet ji, Sat Sri Akal. And good wishes, Harmeet ji. Your good wishes. We need all good wishes to all of the guys for Team Aminder, and keep blessing us all the time like this. Good morning. So Milan. सो तुम्हारी जर्नी में सबसे मेमोरेबल पीरियड कौन सा रहा है? सर घर पे जब अपना जुगाड़ किया वो भी मेमोरेबल था। देन सर कुछ टाइम बाद जैसी ट्रेन स्टार्ट हुई मैं यहाँ वापस भी आ गया। घर का सब कुछ सेटअप हो गया था सर, एक माइंडसेट भी सेटअप हो गया था, वहां पे चल रहा था कंटिन्यू बढ़िया से। जो लैग किया था वो भी कवर अप हो रहा था। फिर देन सडनली यहाँ पे आ गया सर। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ वही कुछ भी नहीं। रेजिस्टेंस ट्यूब थी सर। हम्म। तो फिर अगेन कोच को कांटेक्ट किया कि यहाँ पे ना चिनअप्स मारने के लिए मेरे पास कुछ है ना, सिलेंडर है ना, कुछ भी नहीं है। देन फिर सर अपना होम वर्कआउट सीरीज से उन्होंने बात करके हमने फिर रेजिस्टेंस ट्यूब और बॉडी वेट से ही फिर उसको आगे सो पुश किया कैसा सर। लगा तुमको जोन सी टीम अमिंदर की होम वर्कआउट सीरीज है, जोन सी हमने सबके लिए क्रिएट करी है बॉडी वेट के साथ? कैसी फीलिंग रही उसके साथ? ऑसम सर। बॉडी को थोड़ी पता है सर बकेट है या बारबेल है। वेरी गुड, वेरी। लोगों को तो पता है ना, लोगों को लगता है कि खाली रेजिस्टेंस ना जिम के अंदर होती है, तो ग्रेविटी का लॉ जो सा है ना वो जिम के अंदर लागू होता है, जिम के बाहर ना वो हम ना ग्रेविटी से हट जाते हैं। So it's everyone should know it, like gyms are the most fundamental tool for us, और वो कभी भी हमसे मिस नहीं होंगे। बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस कहीं पे भी क्रिएट करना बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। आप किसी भी चीज में रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। 10 किलो की बोरी, आटे की बोरी या चावल की बोरी या किसी चीज की भी बोरी या सिलेंडर, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग हैज अ वेट इनसाइड इट। आपको खाली उसमें क्रिएशन करनी है कि आप उसको कैसे उसको कर पाओगे। मिलन, तुमको क्या मैसेज देना चाहते हो सबको जो कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही वेट कर रहे हैं और टीम भी ज्वाइन नहीं करते हैं? तुमको क्या लगता है कि जोन से प्रोसेस में, जोन से लेवल में तुम अभी पहुंच गए हो, उस लेवल में तुमने कभी अपने आप को सोचा था, और पहुंचने के बाद तुमको कैसा फील हो रहा है? सर सोचता बहुत था सर, काइंड ऑफ ड्रीम था सर कि हाँ मुझे भी। बिकॉज सर आज भी ना सर हमारे यहाँ पे अगर कोई मोटा है तो उसको थोड़ा सा शुरू से ही चिढ़ाते हैं। अरे वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, उस टाइम पे लीन ज्यादा होते थे, मोटे कम होते थे। तो एक ड्रीम था सर हम्म। ऑलवेज कि कहाँ कभी मैं भी ऐसा दिखूं। अभी और सर तो तुम्हारा, मेरे को याद है तुम्हारा एक और ड्रीम था कि मैंने टीम अमिंदर के पेज में इंटरव्यू में आना है, तो आज तुम्हारा वो ड्रीम भी सर पूरा अर्न हुआ। अर्न कंग्रेचुलेशन। करना है सर, अर्न करके आना है सर। अर्न करके आना, तो अर्न करके आज आए हो तुम, और अर्न करके बहुत सारे जनों को मोटिवेट कर रहे हो और इंस्पायर कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस थिंग। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। और क्या वांट टू गिव सम मैसेज टू एवरीवन? श्योर सर। अब अभी भी सर मेरे को ऐसे लोग को मैसेज आते हैं, मेरी बात भी होती है कि यार जिम खुलेगा तो मतलब हम ज्वाइन करेंगे। मोटिवेशन तो हो रहा है लेकिन अब जिम नहीं है, कैसे करें सर। बहुत से उनमें से ऐसे हैं जो जिम खुले थे उन्होंने तब भी ज्वाइन नहीं किया था। अगर आपको अचीव करना है, मोटिवेशन आज है, हो सकता है कल नहीं रहेगा। आपको खुद को डिसिप्लिन करना है। आप टीम ज्वाइन करो और फिर आप खुद से देखो कि डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है, और आपको पता नहीं लगेगा, आप अपने आप उस पाथ पे चलते जाओगे। और देन सडनली जैसे हम अभी मेरे से पहले सर और भी लोग आए हैं, सबका यही होता है कि हम अपनी पिक्स को देख के सोचते हैं क्या ये हम ही है। वो फिर फील आती है सर। गुड गुड गुड। सो सबको मैं बता दूं, सब मोटिवेशन मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन ना होता नहीं है, कहीं से भी नहीं आता। और मोटिवेशन खाली एक ही चीज से आता है। ये सब इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन नहीं है। ये इंस्पायर कर रहे हैं तुम सबको कि इन्होंने अचीव करके दिखा दिया, तो पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तुम सबको। एक पॉसिबिलिटी तो उन सबके लिए क्रिएशन कर दी है कि हाँ यहां थे और यहां पहुंच गए और बहुत पॉसिबल है। बट मोटिवेशन जो उनसा डेली बेसिस का जो मोटिवेशन है वो खाली एक ही प्रोसेस से आता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं गोल।
अपने गोल को राइट डाउन करें, जो भी तुम्हारे, जैसे मिलन के अंदर एक गोल था कि मेरे को अपीयर होना ही होना है, फैट शर्ट करना ही करना है, और मेरे को इंटरव्यू में आना ही आना है, दैट वाज हिज गोल। उस गोल के ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा काम करना शुरू किया। और आपके पास अगर गोल नहीं है, उस गोल के ऊपर अगर आपके पास वाई नहीं है, उस गोल का क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है, तो आप कभी मोटिवेशन में नहीं जा पाओगे। इसलिए एक ही चीज है मोटिवेट होने के लिए कि आप अपना काम जो सा है, अपना गोल डिसाइड करिए, और गोल डिसाइड करके उसके ऊपर वाई लगाइए, और उस वाई को अचीव करने के लिए जो जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं, उस टूल्स को काबू करिए। और जैसे जैसे टूल्स वो आपके साथ स्किल लर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, आप अपनी गोल की तरफ पहुंचना शुरू हो जाओगे, और एवरी मंथ आपको एक मोटिवेशन आएगा, बिकॉज आप अपने आप को देख रहे होगे अपनी चेंजेस आते हुए। सो सब लड़के, मैं आप सबको बता दूं, इसकी कैलोरीज काउंट जोन सी भी हैं, और कैलोरीज की जोन सी डेफिनेशन है, वो इनके इनके मेंटर को बुलाएंगे अभी और उनसे पूछेंगे। ठीक है, इनसे नहीं पूछ रहे, हम उनसे पूछेंगे, पर इनसे खाली यही पूछ रहे हैं कि मिलन, तुमने कभी ऐसी कोई चीज नहीं खाई जो तुमको पसंद नहीं थी तुम्हारे मील में? सर एक्चुअली मतलब खाया तो सर जो सिस्टम दे दिया उस पे, अभी जब मैं घर से आया था तो मम्मी ने घर से पिन्नी और बेसन की लड्डू बर्फी वगैरह दी थी। तो मैंने कोच से भी यही बात की थी अभी लास्ट वीक भी सर, जब कैलोरीज बढ़ा रहे थे क्या मैं खा सकता हूँ, तो बोले नहीं अभी नहीं, रुक जा, पहले अचीव कर ले। तो मैं अभी सर जब हो गया था ट्रांसफॉर्मेशन भी, उसके बाद वो बोले थे अब तो खा सकता है। तो वही सर बोलता उनको, नहीं जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक नहीं खाऊंगा सर। आज मैं साथ लेके बैठा हूँ। दैट्स आपको अभी समझ लेके आ रहा बैठा है हूँ सबको? सर। आप सबको अभी खाओ, पहले मेरे सामने, पहले मेरे सामने खाओ, सबके सामने खाओ। ये मम्मा का ब्लेसिंग है आपको, आपकी मम्मा का ब्लेसिंग है। आप देखिए क्या जुनून है, इस जुनून को समझिए आप। इसने ऑनलाइन में लाइव में आएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन 3 दिन 4 दिन पहले हमने खत्म कर दिया था, बट बिकॉज इसको लाइव में आना था, उस लाइव से आने से पहले भी इसने वो कंजम्पशन नहीं करी, क्योंकि लाइव अपीयर होना था। दैट्स नोन एज अ जुनून, दैट्स नोन एज अ गोल, दैट्स नोन एज अ वाई। क्यों पिन्नी नहीं खाई? क्योंकि क्योंकि अपीयर होना था लाइव आज सबके सामने, आप सबको इंस्पायर करना था, वो वाय था इसके पास। आपके पास वाय नहीं है, अपना वाय ढूंढिए। क्यों करना चाहते हो, क्यों लूजिंग करना चाहते हो? मोटिवेशन मोटिवेशन करते रहते हो, मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, हम भटक जाते हैं। व्हाट इज दिस? इट हैज नथिंग टू डू विद मोटिवेशन। आपका अपना गोल क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने क्यों करना है, आपको पता ही नहीं आपने किस मंजिल में जाना है, आपको पता ही नहीं है किसी बारे में, अपने बारे में। खाली आपको यह पता है कि मेरे को ना बॉडी चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, आपको अपने बारे में ही कुछ नहीं पता है, और आप मोटिवेशन ना बाहर जाके ढूंढ रहे हो, आपके अंदर है। बैठिए अपने साथ, अपने बारे में बचाइए, अपने बारे में पूछिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर बैठिए हमारे साथ कि आपको वो चीज कैसे अचीव होगी। आप सीधा सीधा मेरे सामने ना डॉक्टर एमबीबीएस बनने की बात करते हो, और पूछते हो कि हम उस प्रोसेस में तो नहीं चलेंगे, सीधा बताओ एमबीबीएस कैसे करें। दैट्स नेवर गोज लाइक दिस इन एनीथिंग। सो यू नीड टू कम आउट विद दैट थिंग। सो मिलन, बात करते हैं तुम्हारी फिजिक की। हम सारे वेट कर रहे हैं, सारे के सारे के तुम्हारे को ऑफ क्लोथ देखें सब, और जोन सी पिक्स हमने निकाली है, सबको ऐसा लगे ना कि हम झूठ बोलते हैं, या हम एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, उसमें हम नर्व्स निकाल देते हैं, या ओवर मस्कुलर कर देते हैं। क्या कुछ ऐसा भी बहुत सारे जनों ने बोलता है कि हम फोटो एडिटिंग भी कर देते हैं, और लाइट शेडो कर देते हैं, और बहुत सारी चीजें कर देते हैं। तो मिलन, दिखा दो जलवा सबको अपनी फिजिक का, और अपना ड्रीम पूरा करो। बिल्कुल सर, सागर सर का मेंटी हूँ। यस यस, ये दिस इज अ ड्रीम, और अपना पूरा करो वो ड्रीम। So here comes the person himself with the off clothes. इसको बोलते हैं जुनूनियत। ये देखो, निक को बोला गया था फोटो एडिट किया है। हर्षित को भी बोलेंगे सारे, हर्षित को सर भी ये तो बोलेंगे। स्टेरॉइड वाला बोलते हैं सर। यस यस, चलो जी, स्टार्ट विद वन डबल फ्रंट डबल बाइसेप पोज। सर यस, जस्ट अ स्टार्ट। सेकंड, जस्ट अ सेकंड सर, थोड़ा सा स्पेस।
Yes, yes, take your time. Yes, double bicep. Go. Very nice. Fantastic. Side chest pose. Side chest. देखिए जरा साइड चेस्ट पोज, आपको नजर आ जाएगा, मजा आ जाएगा. Can you see the thickness of the chest? He has it. Brilliant form. Is a brilliant conditioning. Back double biceps. Millet, back double bicep. Yes. सर Just see the conditioning that the guy has it. Yes, go. Beautiful. Beautiful. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मिलन एक मस्कुलन पोज मार दो, जरा जरा नसें दिखा दो सबको. सबको जरा रूबरू करा दो अपनी नर्व्स के साथ. So you can watch the nerves that he has it. और नर्व्स वाला एक पोज, साइड चेस्ट का पोज, साइड ट्राइसेप का पोज मारो एक मिलन. तुम्हारा जोन सा अभी तुम्हारा फेवरेट पिक है जोन सा, साइड ट्राइसेप. यस. और पास आके जोन सा नर्व वाला पोज मारते हो ना, वो मार दो बिना बिना कुछ किए, जस्ट ऐसे ही खड़े हुए. एंड यू कैन सी द विस्कुलरिटी दैट दिस बॉय हैज इट. ऑसम. Brilliant work done, Milan. Congratulations on achieving this marvelous physique. Naturally, कितने कितना माल खाया है ये बता दो पहले. कितना माल खाया है? हैं? माल कितना माल? समझ रहे. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो मिलन का, मिलन सब सब कंग्रेचुलेशंस, अ बिग कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी तरफ से. अंजलि है जोन सी, अंजलि तुम्हारे को कंग्रेचुलेशंस बोल रही हैं. अंजलि कौन है? अंजलि सर, आई गेस, या सर मेरे फ्रेंड की वाइफ है सर वो इनकी वाइफ है. थैंक यू अंजलि, आपको विश कर रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार. सो अंजलि इज इन टच विद यू आई थिंक. सो कंग्रेचुलेशन फ्रॉम द एंटायर टीम हमिंदर on achieving the goal and making the things happen. And मिलन तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, देखना जरा. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? मेरे को तो आ रही है या मेरे को, आई एम गेटिंग इट. समवन इज राइटिंग दैट उनको नहीं आ रही, बट दैट्स ओके. सो मिलन, पहले तो बहुत बहुत तुमको बहुत सारी मुबारकें टीम उमेंदर की तरफ से. तुम्हारे मम्मी को भी बहुत सारा थैंक यू. और इतना अच्छा लड़का उन्होंने यू नो परवरिश की है. एंड क्या आगे मिशन है मिलन तुम्हारा? सर मिशन सबसे पहले नेक्स्ट गोल? सर मेंटी से अब मेंटोर बनना है सर. टीम ज्वाइन क्यों करनी बनना है मेंटोर? सर जो मैंने अचीव किया है सर, अब दूसरों को भी हेल्प करना है सर. और एक अपने पेज थी, तो ही साइड सर कि मैं एनाबॉलिक्स लेता हूँ सर, और मैं अब देख के इंस्पायर हो रहा हूँ कि सर मैं एनाबॉलिक्स छोड़ के और फिर नेचुरल ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ. तो सर वो देख के सर एक बार लिटरली टच हुआ था सर कि कुछ तो सर असर हुआ है सर, कि नेचुरली भी कुछ पोटेंशियल है सर. तो वो एक पुश जो है ना सर, वो अब आगे लेके जाना है नेचुरली इसको. और ज्यादा सर कि अभी भी सर लोगों को यकीन नहीं है कि नेचुरल कितना पोटेंशियल है. लोग मानने को रेडी नहीं है सर कि पोटेंशियल. उसको और बहुत आगे ले जाना है. झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. छुप के लगा रहे हैं टीम उमेंदर, बताते नहीं है, छुप के लगा देते हैं. और तुमको क्या बता, हमको बताते हैं सारे के सारे. 15 साल का एक्सपीरियंस है हमको भाई, हमको बताएंगे कि लगाया है कि नहीं लगाया. 15 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं. ओके. सो तुम्हारी मॉम और तुम्हारे सिस्टर को हमको लाइव लेना है, तो कैसे लें? सर वो भी हैं सर, देख रहे हैं
तो कौन सा नाम है उनका? मेरी सिस्टर सर मन अंडरस्कोर मौजी है, वो मेरी सिस्टर है सर। वो और मेरी मदर साथ साथ दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आपके बाद उनसे बात करते हैं, ठीक है? श्योर सर। सो सर मिलन, thank you so much for joining and motivating everyone and good luck and mentor तो तुम बन गए, उसको तो कहानी लकीर मार दो, स्टैंप ला दो, टीम उमेंदर के मेंटर तो तुम हो गए। अब आगे तुमने वही वाला सिलसिला शुरू करना है कि हाउ मेनी यू विल बी क्रिएटिंग द थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड, कितने जनों को तुम इस मुकाम पर पहुंचाते हो और उनका गोल अचीव कराते हो। दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मिशन फॉर ऑल ऑफ अस, और ऐसे ही सिलसिला चलेगा। Thank you for joining, Milan. God bless you and best of luck for your next journey. थैंक यू सर। God bless. Okay, see you. सर That was a wonderful journey with Milan himself, and he hope everyone got motivated. So हम चलते हैं, क्विकली चलते हैं उसके मेंटर से चलने से पहले उसकी पापा से बात करने के लिए या मम्मा से बात करने के लिए, उनकी बहन से बात करने के लिए, उनका व्यू लेने के लिए कि उनको कैसा लगा ये उनके बेटे ने ये अचीव किया है। और उसके बाद हम सीधा बात करेंगे उसके मेंटोर से, और मेंटोर से लेंगे सारी डिटेल्स, उसकी कैलोरीज की इनपुट और उसकी एक्सरसाइज की इनपुट, क्या क्या किया उसने। मिलन, अगर आप कोशिश करें कि अपनी सिस्टर या मदर या फादर को कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज कनेक्ट नहीं हो रहा है आई थिंक, आप कनेक्ट कराइए। कौन? मन मौजी, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। I'm trying to connect to Milan's father and sister and family, so that I want to see their faces. How do they feel good about it on seeing their son reaching that level now? इस level में पहुंच गया है जहां पे दुनिया उसको देख के इंस्पायर हो रही है, और यही इंस्पिरेशन सबके अंदर होती है। आपको ढूंढनी है अपने अंदर, आपको मिल नहीं रही अपने अंदर से, आपको ना बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बाहर नहीं ढूंढो, अपने अंदर है और उसको निकालो अपने अंदर से, तभी चीज को आपको पता चलेगा। हे, वी हैव कम ओवर है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको पहले तो आपको चरण नमन हमारी तरफ से, आपको पैरी पौना और आशीर्वाद दीजिए हमको। थैंक यू एंड यस 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 यस, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, सबसे पहले आपको, आपकी टीम को एंड योर टीम मेंबर दिस मिलन। थैंक यू सो मच फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस बॉय। अरे हमने तो किया नहीं है, उसने खुद किया है। He has transformed himself. नहीं, जुनून तो आपने ही पैदा किया ना। जुनून तो उसके अंदर था, हमने तो उसको ना हीरा तो हर के अंदर का, ऊपर वाले ने हीरा हर इंसान को बनाया है। क्या जिसको कदर आ जाती है वो अपना हीरे की पहचान खुद बना लेता है। यस, फ्यूल तो था, लेकिन फ्यूल को आग तो आपने दिखाई ना। आग तो हम बहुत दिखाते हैं, सबको दिखाते रहते हैं, हमारा काम है वो। आपको बहुत बहुत मुबारकें कि आपका लड़का इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊं आपको, इतना डेडिकेटेड लड़के बहुत कम मिलते हैं, और वो इतना राइज करेगा और टीम उमिंदर की फैमिली के अंदर वो बहुत ऊंचे पायदान में बैठेगा आके, और आपको मैं फिर दोबारा इंटरव्यू में बुलाऊंगा जब उसका पायदान इतना ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आज ऐलान कर रहा हूं कि उसका पायदान ऊपर लेके जाएंगे और दोबारा इंटरव्यू में लेके आएंगे आप सबको। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत मुबारकें आपको। आपको कैसा, देखो देखो ये खुशी इसी को बोलते हैं। आपको मैं सारा जी क्या देख रहे थे? बहुत बहुत कैसा लगा आपको? हाँ जी, देख रही थी, आपको भी देख रही थी, बातें भी सुन रही थी। अरे बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको अपने बेटे का अचीव करके? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपकी टीम को, मिलन को। और अब आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है और मिलन आपको कराएगा। ठीक है। हाँ जी, वो तो कहता रहता है मेरे को, खाने पीने के लिए भी कहता है। हाँ, तो आपने अब करना है अंकल, आपने भी करना है, और आपने एक्सरसाइज शुरू। लॉकडाउन में मेरे को तो 6 किलो पहले ही डाउन कर दिया है इसने। क्या बात है, क्या बात है। The process is already started. ले आया मेरे को लॉकडाउन के अंदर ही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, इसी को तो बोलते हैं आगे अपने आप कवरिंग होनी शुरू हो जाती है। यस 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 यस।
बहुत बहुत मुबारक है हमको, हमारी तरफ से आप सबको। आप बहुत अपना बहुत धन्यवाद आशीर्वाद, सर, बहुत 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 अपना धन्यवाद। आशीर्वाद रखिए हमारे ऊपर, और टीम को एक आशीर्वाद दीजिए ताकि वो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को खुश कर सकें। हाँ। विश यू ऑल द बेस्ट सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so उनकी उनकी मिलन की सिस्टर से भी बात करना चाहते हैं हम। Hi, sir. शी इज हियर सर। हाय हाय, Thank you. congratulations, hope you Thank- now you can go out to the market and openly sell every person के मेरा भाई है बहुत तगड़ा, कुछ बोलोगे ना तो पीछे छोड़ दूंगी। Right, sir, right. All thanks to you, sir, for your guidance. Always there. God bless all of you and enjoy this wonderful moment, and feel proud about what Milan has Very, achieved very this time. proud, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you ji. Thank you. God bless. So this was a memorable moment. ये वाले moments ना आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं और इतना खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है कि हमने एक फैमिली को खुश किया। उस फैमिली को खुश देख के उनकी शक्लें और उनका एक्सप्रेशंस देख के जो उनसी फीलिंग आती है ना, वो कभी आ नहीं सकती और किसी चीज के ऊपर। और आप भी अगर अपनी फैमिली को वो वाला खुशी देना चाहते हो ना, तो मिशन लाड़ लो, खुद जुड़ जाओ और वो चीज मकाम हासिल करो जो दुनिया बोलती है पॉसिबल नहीं है। वो चीज निकाल के लेके आओ जो लोग बोलते हैं हो ही नहीं सकता, और वो ही हासिल करके दिखाएंगे। हम आपके साथ बैठे हैं और आपके साथ हमेशा बैठे रहेंगे, आपके साथ 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 बन के चलेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और हम झूठ बोलते नहीं हैं। और हमारी फैमिली, टीम अमिंदर की जो फैमिली है वो एक ही दायरे में है, सारे के सारे एक जैसे हैं। हम ना कभी भी इधर उधर नहीं जाने देते, एक चीज के ऊपर रहते हैं, और जो एक जना एक मेंटर बोलता है ना, वो सारे के सारे वही बोलते हैं, एक ही लेवल के ऊपर चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब सीधा चलते हैं उसके मेंटर के ऊपर, क्योंकि टाइम खत्म होने का टाइम है। कैन वी गेट द मेंटर ऑनलाइन? सागर, कैन यू कम ऑनलाइन so that I can connect to you with the details? 100 million done deal hai. Thank you Paramjot. Thank you Paramjot ji. Thank you so much. Rohit, 100 million is done deal. Team Aminder is number 1 team in the world. That's a done deal. वो हो गया, वो तो कर दिया हमने. We are a big family now. Thank you Hitesh. Sagar, can you come online because we need to be little quick. Sagar, can you come online? Yes. Sagar is approached, so we will take a quick view from Sagar about the detailings. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। कैसा है? एक नंबर, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉलर दिखा पहले, डॉलर दिखा। ये कवर्ड है, अच्छा चला, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। सागर इज वन ऑफ द मोस्ट। सागर, मेरी आवाज ना गूंज रही है, क्यों? सर ऑडियंस से पूछते हैं, आई थिंक सो उनको ऑडियो। मेरी आवाज सबको क्लियर है क्या? Is my voice clear to everyone? विशाल, you are most welcome. इको हो रहा है ना? इको हो रहा है। तेरे को हेडफोन लगाना पड़ेगा। अभी हो रहा है सर? अभी हो रहा है। ईयरफोन पहन लो। सर हेलो, अभी ठीक है? इको तो अभी भी है भाई। मेरी किस्मत ही खराब है। अभी है क्या इको? देखो जरा। अभी इज माय वॉइस क्लियर? सागर तुम बोलो। सर मेरे को तो साफ आ रही है आपकी वॉइस। Okay, now yes आ रहा है। Maybe it is from my side. So सागर, चलते हैं सीधा। बहुत ही सागर के बारे में बता दूं, सागर बहुत ही एंथोर, सबसे पैशनेट यंगेस्ट मेंटोर है टीम में, और बहुत चुलबुला सा है, बहुत शरारती लड़का है हमारे टीम का। और आपको बता दूं कि बहुत ही टैलेंटेड बॉय है हमारे टीम का ये, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है पिलर, और बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का भी है, और थोड़ा लड़कियों की तरफ ज्यादा भागता है।
पर है इसकी एक ही है, कहता है मैं एक से खाली रहूंगा, सारों से नहीं रहूंगा, और एक ही जहान है और एक के साथ मैं रहूंगा। तो सागर बताओ मिलन के बारे में बताओ कुछ। मिलन ने जब ज्वाइन किया था तो क्या कंडीशन थी और क्या तुमने उसको एनालाइज किया था इनिशियल बेसिस में? कंडीशन ऐसी थी सर। आवाज साफ आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरे को, कम है, थोड़ी स्लो है। माइक उतार दो तुम। आप बोलो। ठीक है सर। सर जब मिलन आया था तो बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा था, मसल मास भी अच्छा था, और फॉर्म्स वगैरह भी अच्छी थी, स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, और बेसिक सी नॉलेज भी थी, तो अच्छी बात थी। और उसी की वजह से थोड़े से डाउट्स भी थे। तो स्टार्टिंग में एक हफ्ता उन्होंने थोड़ा सा पूछा कि ये खाना नहीं खाना, उसके बाद बड़ा स्मूथली चला, ऐसा कुछ नहीं था कोई दिक्कत हुई, बड़ा स्मूथली चला। उन्होंने जो कहते गया सुनते गए वो, तो स्मूथली चला। तो सागर तुमको क्या लगता है? तो उन्होंने मिलन ने बोला कि उसकी डाइट जो सी है ना, उसको खाली एक ही, उसने बोला कि फिक्स करने के लिए एक ही डाइट दे दो मेरे को ना, बार बार इतनी चेंजेस नहीं करनी है। हाँ। तो वो तो बहुत ही एक अच्छा सा इम्पैक्ट था। और उसमें क्या होता है कि यू डोंट वर्क सो मच ऑन द डाइट, बट यू वर्क ओनली ऑन द पैशन एंड द वॉल्यूम ट्रेनिंग के ऊपर हम बात करते हैं, और एक तरफ उसको फिक्स कर देते हैं। नहीं तो मेंटर ना हमेशा उसकी डाइट ही चेंज करने में लगा रहता और कुछ कर नहीं पाता। क्या फीलिंग थी तुम्हारी? नहीं सर, ये गुड पॉइंट था, मतलब पॉजिटिव पॉइंट था कि वो ज्यादा इतने चेंजेस नहीं मांगते थे, क्योंकि अगर ज्यादा चेंजेस मांगेंगे वो भी ज्यादा कंफ्यूज होंगे, मैं भी ज्यादा कंफ्यूज होऊंगा। ज्यादा चेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक खाना दे दिया, शाम को 4 रोटी खानी है तो 9 महीने आपने 4 रोटी खाई। 4 रोटी के थोड़े से चावल हो सकते हैं, उसके थोड़ा सा पोहा हो सकता है, उसकी जगह दलिया हो सकता है, ये चीजें चेंज हो सकती है। लेकिन आप सोचोगे कि अगर यूट्यूब पे वीडियो देखिए, कोच ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता, और जिसमें होता है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजल्ट भी नहीं आते, जैसे हम देखते हैं, और उनको सामने वाले को भी पता चलता है कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे। ओके, तो जोन सा सागर, तुम मेरे को ये बताओ कि उनकी जो कैलोरीज हमने शुरू की थी वो कितनी, मतलब कितने हम ओवरऑल, आई थिंक द कैलोरीज आर वर सेम थ्रू आउट, तो कितने में रखा था उन्हें? सर व्हेन आई वाज वॉचिंग मिलन, तो मैं एक फनी सी बात ध्यान में आई मेरे, जो पिछले मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए हैं, तो व्हेनेवर यू आस्क मी अबाउट कैलोरीज एंड प्रोटीन इनटेक, आई ऑलवेज सेड कि 1700-1800 के करीब खा रहे हैं, 130-40 ग्राम के करीब प्रोटीन खा रहे हैं। तो लास्ट के 4-5 लोगों को वही बोला मैंने, इनका भी वही है, 1700-1800 के करीब कैलोरी थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोटीन था 130-140, इतना अराउंड प्रोटीन था। कार्ब्स फैट्स उनके फूड के प्रेफरेंस के हिसाब से था। अगर उनको मान लो तो फटाफट सागर, फटाफट करते हैं, फटाफट। कोई सप्लीमेंट कौन से यूज किए गए? सप्लीमेंट सर, वी यूज्ड वे प्रोटीन व्हेन ही वेंट वेज। वो बाद में वेज चले गए थे, क्योंकि पहले एग्स खाते थे, एग्स खाने भी बंद कर दिए, उसके बाद वे प्रोटीन यूज कर रहे थे। आई थिंक सो ओमेगा 3 यूज कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, और कुछ यूज नहीं किया हमने। ऑसम। तो उसकी ट्रेनिंग वेरिएशंस में उसने कभी कोई दिक्कत डाली कि भी मेरे को ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ ऐसी कोई दिक्कत कभी आई? नहीं सर, ऐसी कोई मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं है। गाय आदमी नहीं कहते, वैसे ही थे। सो आप सभी को बता दूं कि आपको अगर ये पूछना है कि कितनी कैलोरीज थी और कितनी थी, तो उसकी बहुत सिंपल सी गेम बाहर निकल के आती है। हर बारी जब हम कोई भी इंटरव्यू करते हैं कि वो हमारी कैलोरीज तकरीबन 1700-1800 में निकलती है हर एक की, और प्रोटीन उसके अपने लेवल के हिसाब से निकल के आता है। और एक ही चीज जो सी सब में कॉमन होती है, और वो होती है कंसिस्टेंसी और जुनून अपने गोल को पहुंचने का, और यही बस उसको पहुंचाती है। और मिलन बोल रहा है मेरा सिट्रलिन जोन सा है वो वेस्ट हो गया, उसके पास पुराना डब्बा पड़ा होगा और हमने यूज नहीं कराया उसको। और कितना स्टेप्स काउंट कर रहा था मिलन? 10,000 ऑलमोस्ट। वो भी लास्ट, मतलब जब लास्ट के 4-1 महीने किया होगा 10,000, स्टार्टिंग में इतना नहीं किया। ओके, तो तकरीबन कार्डियो तो हम कराते नहीं किसी को, तो रनिंग वाज नॉट ऑलवेज अ पार्ट, इट वाज ओनली द स्टेप काउंट जो सी वॉक में हम लेके आते हैं सबको, ताकि पूरा दिन उसकी रहे। और कुछ ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट तुमको नजर आता है? फटाफट 10 सेकंड आप दीजिए। मेमोरेबल मोमेंट ये था सर कि लास्ट में जब उनकी मतलब फिजिक अच्छी तैयार हो गई, तो उसके बाद वो मतलब फोटोज भेजते थे एक साथ,
300 फोटोज और वो एक फोटो